Good morning, students. Welcome to social science class. Students, we are doing Life on the Earth, chapter number 6. In this, we have already discussed about the tropical hardwood forest. Now, today we are going to discuss the grasslands and desert area. So, let's start. Grassland and desert, that is our today's topic. As the name shows, grasslands. Grassland are the areas which has the main vegetation as grasses. Okay, the vegetation of that area is dominated by grasses, grass-like small plants and scattering of trees. Grassland are found in the area of scanty rainfall with varying temperature condition. It means the temperature is less here to grow big trees. Okay. The rainfall is not sufficient for the growth of big trees. So the major part of these areas are covered with grasses and small plants. On the basis of climatic condition, these grasslands are divided into two groups: tropical grasslands and temperate grasslands. Now let's discuss what are tropical grasslands. Tropical grasslands are the areas between the equatorial forest and the hot desert in both the hemisphere. Equatorial forest में dense forest है, okay, because the equatorial region receives heavy rainfall. बहुत ज़्यादा rainfall होती है, okay, और इन रीजन से थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें उनसे कम रेनफॉल मिलती है. 100 सेंटीमीटर नियर अबाउट रेनफॉल रिसीव्ड बाय दीज एरियाज. तो इन एरियाज में जहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इक्वेटर से थोड़ा सा आगे वी फाउंड ग्रासलैंड्स. ठीक है, तो ये डेजर्ट एरिया और इक्वेटर दोनों के बीच में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं. ओके, एंड दीज ग्रासलैंड्स receive about 100 centimeter rainfall. The grasses of these regions are very rough, thick and tall. Campos in Brazil are example of these grasslands. यहाँ की grassland में जो grasses हैं वो बहुत ज़्यादा rough होती हैं, thick होती है और tall होती है. और sometimes कितनी tall कि ये मैन से भी ऊपर निकल जाती हैं. ओके, टॉलर देन मैन. एंड कंपास जो ब्राज़ील में है वो इन ग्रासलैंड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. हेयर इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड इन विच यू कैन सी द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. जस्ट सी above the equator. ठीक है, इक्वेटर से ऊपर ये एरियाज़ हैं, इक्वेटर से थोड़ा दूर ये एरियाज़ हैं जहाँ पर ग्रासेस ग्रो करती हैं. ओके, सवाना, कंपास और ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना. दीज आर द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड. Temperate grasslands are located in temperate zone and in the interior part of the continent. These grasslands receive about 25 to 75 centimeter rainfall. जो grasslands इक्वेटोरियल रीजन से अबव थे या उससे थोड़ा दूर थे वहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल थी, बट टेम्परेट ग्रासलैंड्स में 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल है.
and sometimes they receive snowfall also. The grasses of these regions are short and soft. इन एरियाज की grasses बहुत ज़्यादा short होती हैं और बहुत soft होती हैं. These grasslands are known by different names in different areas. For example, prairies in North America, pampas in South America, downs in Australia and veld in South Africa. तो हर एरिया के नाम से हर कंट्री में ये डिफरेंट नेम से कॉल किए जाते हैं. ओके, सो हियर इज द मैप. इस मैप में आपको प्रेरीज दिख रहा है, स्टीप्स, पम्पास, वेल्ड, डाउन्स. These are the major grassland areas, temperate grassland areas. Okay, you can easily mark these areas in world map. So your task is to draw these areas in world political map. Okay, ये एरियाज जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज हैं वो आप वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में या फिजिकल मैप में मार्क करेंगे. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू मार्क ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. सो लेट्स मूव टू द डेजर्ट. What are deserts? Deserts are the areas where we have less rainfall. Okay, these areas receive very less rainfall and the vegetation is also nil due to low rainfall. ठीक है, इन एरियाज में वेजिटेशन भी नहीं होती है क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा नहीं है. Okay, these are the vast areas which has less vegetation due to very scanty rainfall. बहुत कम रेनफॉल होने के कारण इन एरियाज में कम वेजिटेशन है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर deserts can be divided into two parts, namely hot desert and cold desert. In background you can see a picture and can you tell me which desert is it? ये कौन सा डेजर्ट है? Yes, it is hot desert. ठीक है, तो सैंड दिख रही है हमें. ठीक है, तो ये शो करता है कि ये हॉट डेजर्ट है. इन कोल्ड डेजर्ट वी हैव स्नो. ठीक, हर तरफ हमें क्या दिखाई देगा? स्नो. तो लेट्स डिस्कस द हॉट डेजर्ट. फर्स्टली, these are mostly located on the western margins of the continent where temperature remains very high throughout the year. हॉट डेजर्ट्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? वेस्टर्न मार्जिन्स पे, एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेजर्ट्स होते हैं. ओके, और इन एरियाज में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है. कैक्टस, shrubs and bushes are the common vegetations of this area. इस एरिया की कॉमन वेजिटेशंस क्या हैं? कैक्टस, shrubs and bushes. Some important hot desert of the world are the Sahara Desert in Africa, Thar Desert in India and Atacama Desert in South America. मेन डेजर्ट्स, उनमें से कुछ के नेम आपको बता रही हूँ. अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट. ओके, इंडिया में थार डेजर्ट जो हमारा राजस्थान एरिया है वहाँ पर थार डेजर्ट है. एंड साउथ अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट्स हैं. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एरियाज. और यहाँ पर आपको बहुत स्मॉल बुशेस दिखेंगी, श्रब्स दिखेंगी, झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं. ठीक है, थॉर्नी ट्रीज होंगे सम एरियाज और कैक्टस दिखेंगे.
ठीक है, तो ये यहाँ की कॉमन वेजिटेशन है. नाउ कोल्ड डेजर्ट. द कोल्ड डेजर्ट्स आर कॉमनली फाउंड अराउंड द पोलर रीजन्स. पोलर एरियाज में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होता है और यहाँ पर स्नो होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड इट रिसीव लेस रेनफॉल और समटाइम्स स्नोफॉल. ठीक, बहुत कम बारिश होती है और कई जगह तो बारिश भी नहीं होती है. ठीक है, तो द कोल्ड डेजर्ट्स आर मोस्टली फाउंड अराउंड द पोलर रीजन्स where temperature remains below freezing point for the major part of the year. Mosses, lichens are the common vegetation of this area. Some important areas of cold desert are northern part of Siberia and northern part of Canada. Okay, these are the glaciers जहाँ पर हर वक्त ठंड रहती है. उन एरियाज में मैक्सिमम कोल्ड डेजर्ट्स होती हैं. क्लियर. एंड इन इंडिया वी हैव अ कोल्ड डेजर्ट दैट इज लद्दाख. हिमालयाज में ऊपर बिल्कुल पीक पर लद्दाख है जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है टेम्परेचर और उस एरिया को भी कोल्ड डेजर्ट कॉल किया जाता है. ओके, तो कोल्ड डेजर्ट मीन्स the areas with low temperature. Okay, and this area is covered with snow. ये एरिया मैक्सिमम टाइम स्नो से कवर्ड रहते हैं. ओके, ड्यू टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कि जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो है, इसलिए यहाँ पर जो भी वाटर है या जो भी मॉइस्चर है वो फ्रीज हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट कोल्ड डेजर्ट. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द हॉट डेजर्ट्स. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स. आपको ये सब समझ आए होंगे बहुत अच्छे से और कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है बेटा तो इट इज़ वेरी मच ईजी टू लर्न दीज. ओके, एंड आई होप all these are clear to you all. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.